ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧਿਆ ਸੰਪਰਕ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ। ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਟ ਲੈਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਅ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। 84 ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਆਰ ਨੈਣ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕੱਲ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਨੈਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਥਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨ ਬੱਸ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਥਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी शंकर आनंद लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि केंद्र ने संपर्क किया है कुछ किसान नेताओं को, इस पर क्या कुछ डिटेल जानकारी है? देखिए, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे हूं और सिंघू बॉर्डर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि ठीक उस जगह पे जहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो नेता हैं वो यहां पे बैठक कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं इस मसले को लेकर कि किस तरह से किसान आंदोलन की जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाना है। और इससे ठीक 8 किलोमीटर का फासला आगे पे हरियाणा के जो अंदर में एक और बैठक चल रही है जहां पे केंद्र सरकार के जो द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं बाकायदा वो वहां पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा बनाई गई जो कमेटी है जिसमें कि 5 सदस्य कमेटी के अधिकारी लोग वहां पे पहुंचे हैं और वहां पे बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम इस मसले का जल्द से जल्द समाधान करना है। और इस मामले पे एक जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं उन्होंने किसानों की जो कमेटी है बाकायदा उससे संपर्क साधा है और इस मसले पर जल्द से जल्द मसले को खत्म करने के लिए लिखित तौर पर आश्वासन देने के लिए भी तैयार हैं। जो मसले हैं, जो मुख्य मसले की अगर बात करें तो दर्ज एफआईआर
का क्या होगा, क्या उस मामले जी। पर आगे कार्रवाई होगी या उस मसले का खत्म कराने के लिए किस तरह से चर्चा करनी है, तो इस मसले पर लिखित तौर पर आश्वासन देने के लिए भी अधिकारी तैयार हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे इन किसानों के लिए, इन किसान संगठनों के बीच में एक अलग मैसेज आ सकता है और उसके बाद जो आंदोलन की जो रूपरेखा है वो लगभग खत्म हो सकती है और इस मसले पर किसान संगठन मान सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जो अधिकारी हैं इस मामले पर एक काफी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे आज देर शाम तक आज किसान संगठन और आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आ सकती है। फिलहाल जो एक आशा है, एक जो जिस तरह से बाकायदा वार्ता चल रही है, वार्ता के दौरान जिस तरह से अब एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है जिसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए अधिकारी और इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा नियुक्त गए जो बनाई गई जो कमेटी है उसके बीच में काफी सकारात्मक तरीके से, काफी पॉजिटिव तरीके से वार्ता जो है वो आगे बढ़ चुकी है। आज 12:15 बजे ये वार्ता प्रारंभ हुई। हालांकि कल का अगर बात करें तो कल संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा बनाई गई जो कमेटी है उसके द्वारा इस नाराजगी भी जताई गई थी और कहा गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी अधिकारी उनके साथ संपर्क में नहीं साधे हैं, ना ही बातचीत करने के बाद बातचीत करके इस मामले का समाधान करने के लिए लोग आ गया है। तो उसके बाद आज की जो बातचीत है कहा जा सकता है कि इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे किसान संगठन के सूत्र बता रहे हैं कि आज की जो बातचीत है उसमें काफी पॉजिटिव बातचीत हो रही है और हो सकता है कि देर शाम तक इस मामले में कुछ अच्छे रिजल्ट निकलने की संभावना भी है। तो निश्चित तौर पे हर कोई चाहेगा कि उसका समाधान हो, समाधान इस मसले को लेकर हो कि किसान और किसान आंदोलन को लेकर जिन जिन बुनियादों मसलों को लेकर अभी भी आंदोलन चल रहा है, किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन मसलों का समाधान होना चाहिए। तो उसके लिए आज ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अभी भी देखिए यहाँ पर बैठक जो आप गेट देखते हैं, गेट बंद है और यहाँ पर गेट के अंदर में वहाँ पर मीडिया कर्मी और जो किसान संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं वो अंदर में हैं, वो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और जो भी बातचीत होगा, जो भी मसौदा होगा, जो भी आंदोलन की एक रूपरेखा है उसको लेकर तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर इस मामले को लेकर औपचारिक तौर पर जानकारी भी दी जाएगी, बताया जाएगा कि किन किन मसलों को लेकर बातचीत हुई। आज जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत का क्या फैसला लिया गया है, तो इन तमाम मसलों पर औपचारिक तौर पर जानकारी भी दी जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं असर जरूर एसकेएम की मीटिंग पर, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग पर भी पड़ेगा, क्योंकि पहले ही किसान नेता चेतावनी दे रहे थे कि वो कोई ना कोई अगली रणनीति तय करेंगे। शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। केंद्र ने संपर्क साध लिया है किसान आगुआं दे नाल, ਇਹ ਵੱਡੀ खबर है। इस वेले दी एक मीटिंग चल रही है ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ संयुक्त किसान मोर्चे ने बनाई सी, उस कमेटी दे नाल संपर्क साधिया गया है ਤੇ इस वेले केंद्र सरकार ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के बाकी ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा की जा रही है। लिखती तौर ਤੇ ਭਰੋਸਾ भी दिता जा सकता है, केस रद्द करने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी फैसला हो सकता है। तो 2 मीटिंगां पैरेलल चल रही ने, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चल रही है ਤੇ दूसरे पासे किसानां दी बनाई कमेटी 5 मैंबरी कमेटी दे नाल इस वेले केंद्र सरकार दे अधिकारियों की बैठक चल रही है। देखना होएगा कि संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों हुण की अगली रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि सरकार ने संपर्क जरूर साध लिया है। तो जिथे खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने संपर्क साध लिया है किसान आगुआं दे नाल, उस तो पहला कल काफी तेवर तलख नजर आए सी, कमेटी दे नाल कोई संपर्क नहीं किया गया सी, उसनू लैके अज भी जेड़े तेवर ने वो तलख नजर आ रहे ने किसान आगुआं दे। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक तो पहला किसान आगू दर्शनपाल का वड्डा बयान भी सामने आया सी। उन्होंने कहा कि सरकार दे रवैये करके किसानां दे विच गुस्सा है, ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी मंगां ने वो पूरीआं करन दे उत्ते अजे तक कोई गलबात नहीं हुई, कोई लिखती भरोसा नहीं आया, वो मंगां अजे तक पूरीआं नहीं कीतियां गईयां। इसनू लैके दर्शनपाल किसान आगू उन्हां दा बयान है कि सरकार दे रवैये नू लैके किसानां दे विच गुस्सा है ते किसान मंग कर रहे ने ट्रैक्टर मार्च कड्ढण दी। बैठक दे विच इस ते फैसला होएगा कि की ट्रैक्टर मार्च कड्ढिया जाना है कि नहीं, क्योंकि कल भी किसान आगुआ ने कहा सी कि साडा प्रोग्राम स्टैंड करदा है। जद खेती कानून वापस करन दा ऐलान होया सी तो औपचारिक तौर ते एक स्टैप किसानां ने भी वापस लिया सी, उसनू पोस्टपोन कर दिता गया सी ट्रैक्टर मार्च नू, लेकिन ये ट्रैक्टर मार्च अजे भी स्टैंड करदा है। यानी कि अगर बाकी मंगां नहीं मन्नियां जांदियां
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਵਰ ਤਲਖ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, सरकार ने बातचीत नहीं की, इसको लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में और लोग यहाँ तक कहते हैं कि आंदोलन को फिर ट्रैक्टर मार्च किया जाए और सरकार ने जो बात नहीं की इसके बावजूद कि हमने कमेटी बना ली थी, ये आज मीटिंग में डिस्कस होगा और पूरे संगठनों से सलाह करके नेक्स्ट फॉर्म ऑफ जो स्ट्रगल है, नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रगल है, वो डिसाइड करके शुरू किया। दर्शनपाल जी, यानी कि आंदोलन में आगे से समाप्त हो सकता है और आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी? जी, आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे के मतलब केस वापस लेने हैं। एमएसपी के ऊपर जो सरकार ने ट्वीट किया है उसको फॉर्मल रूप देना है। पावर बिल और पराली वाले में फॉर्मल रूप देना है, ट्वीट करके जब उसमें तो बोल ही दिया उन्होंने। नो, इट इज अप टू गवर्नमेंट कि वो कैसे करती है, इसलिए हमारे बस का बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की, हमने स्वागत किया, हमने चिट्ठी लिख दी कि बकाया मुद्दे ये हैं। अब उस बकाया मुद्दे पे सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सुनने में लिखा कि सरकार कहती है कि बात किससे करें। हमने कहा चलिए 5 मेंबर कमेटी बना देते हैं, आप इससे बात कर लो। अब सरकार उससे बात नहीं कर रही, तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इसे समेटने के बारे में गंभीर है कि नहीं है, या कि सरकार चाहती है कि इसको और लटकाया जाए। दुनिया का कौन सा आंदोलन है जो अपने साथियों के खिलाफ केसों की बात किए बगैर उठ जाता है? कौन सा आंदोलन है जो जख्मी और शहीद लोगों के बारे में सेटलमेंट किए बिना उठ जाता है? क्या सरकार ये उम्मीद करती है? अगर ये उम्मीद है तो हम ऐसे कृतघ्न लोग नहीं हैं। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पनसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए।
फिर उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।